Welcome students in the second part of our topic power metallurgy. In the last topic we have studied about the advantages, disadvantages and the limitation applications of the powder metallurgy. I have given you the brief introduction. Now let's start this process with this flow chart. I will again summarize that video. You can see this. The flow chart shows the process of the powder metallurgy. What are the process involved in the powder metallurgy? As I have explained in the last video, today also I will be doing the same before explaining each and every process in expandable form. So what is the powder production? सबसे पहले powder metallurgy में what we do is the powder production. Okay, how the powder production has been done, I will explain you later. First, we will see the general names of the process. First, the powder production is done, then powder characterization and testing होता है, then mixing, blending, then processing, compacting, sintering operation, ठीक है, compacting means pressing भी होगा, then finishing operation and finished parts. Okay, so this is the flow chart of the powder metallurgy. Okay, you can see this and you have to draw this whenever you are going to define powder metallurgy. That powder metallurgy consists of these following processes. Now one by one we will learn this, that how how blending is done. So one by one we will I will explain you each and every process. Let's start from the powder production, how powder production is done. Before doing this, we must know what are the process involved in the powder production. The methods of the methods of powder production. First method is atomizing. Second method is gaseous reduction. Third method is electrolysis process. Fourth one is carbonyl process. Fifth step is stamp and ball mills. Sixth one is granulation process. Seventh step is mechanical alloying. Eighth one is other methods. Those are involved in making powders. Okay. So these are the process involved in the powder production. But first one is atomizing. What is atomizing? In this process, molten metal is used. Molten metal यानी पिघला हुआ metal, ठीक है, is what is done with the molten metal, मतलब पिघला हुआ metal के साथ हम क्या करते हैं? It is forced through an orifice. Orifice हम जानते हैं जिसमें प्रेशर ज़्यादा होता है और एरिया कम होता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है और एरिया कम होता जाता है. It is forced through an orifice. ठीक है, into कहाँ फोर्स किया जाता है इसको? into हाई वेलोसिटी एयर में. ओके, ये एयर भी हो सकता है, स्टीम भी हो सकता है, या इसके जगह पे हम कोई इनर्ट गैस भी
यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो what does happens in this process causes extremely rapid cooling and disintegration into a very fine powder। ठीक है, क्या हो रहा है, मोल्टन मेटल को हम, मोल्टन मेटल मतलब पिघला हुआ मेटल जिसके टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, उसको हम क्या करते हैं, ऑरिफाइस। ऑरिफाइस क्या होता है, इस तरह से एक नोजल जैसा होता है। ठीक है, यहाँ से हम उसको ले मोल्टन मेटल को पास कराते हैं, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है। ठीक है, धीरे धीरे देखिए यहाँ से एरिया कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, दबाव बढ़ता जाता है, और उसकी वजह से यहाँ से ये काफ़ी फोर्स के साथ में, दबाव के साथ में बाहर निकल के आता है। तो जब ये बाहर निकल के आता है तो यहाँ का इसको कहाँ निकालते हैं, जहाँ पर एक हाई वेलोसिटी एयर होता है, स्टीम होता है, या फिर इनर्ट गैस होता है। तो ये जो एयर, स्टीम या इनर्ट गैस होता है, यहाँ पर इस पिघले हुए मेटल को ठंडा कर देता है। ठीक है, ठंडा करने की वजह से क्या होता है, जो नीचे में ठंडा होने की वजह से जब ये कलेक्ट होता है नीचे में, तो ये वेरी फाइन पाउडर के रूप में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, बट ये जो एटोमाइजिंग का प्रोसेस है, इट इज लिमिटेड टू वेरी फ्यू मेटल विद अ लो मेल्टिंग पॉइंट। सिर्फ उन्हीं मेटल में किया जा सकता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है काफी कम होगी। ओके, एयर, स्टीम और इनर्ट गैस, दिस प्रोसेस causes rapid cooling, extremely rapid cooling। ठीक है, causes rapid cooling and disintegration into a very fine powder। ठीक है, बहुत ही बारीक पाउडर बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट इज गैसियस रिडक्शन। ओके, ये नोट्स आप लिख लेंगे, मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ गैसियस रिडक्शन के बारे में। गैसियस रिडक्शन, ये क्या होता है, दिस प्रोसेस इज कंसिस्ट ऑफ इट दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ग्राइंडिंग दी मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है जिसको हम ग्राइंड कर देते, ग्राइंड करना मतलब पीस देते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड इनटू फाइनली डिवाइडेड स्टेट, देन reducing it by हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, ठीक है, पीस दिया जाता है मेटालिक ऑक्साइड को, और उसके बाद उसको कम किया जाता है बाय रिड्यूसिंग इट बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये किस किस मेटल में किया जाता है, आयरन में कर सकते हैं हम इसको, टंगस्टन में कर सकते हैं इस प्रोसेस को, हम कॉपर में कर सकते हैं, जिनकी मेटालिक पॉइंट जो है, ऑल द मेटल्स हुज मेटालिक पॉइंट इज अबव इज ग्रेटर देन 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, उन सभी मेटल्स में कर सकते हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है 1100 डिग्री सेंटीग्रेड में। ऑटोमाइजेशन किस में कर सकते हैं, ऑटोमाइजिंग उनमें कर सकते हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होती है। ठीक है, सो दिस इज गैसियस रिडक्शन। नाउ लेट्स सी अबाउट what about electrolysis process। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जैसे केमिकल प्रोसेस होता है उसी तरह से, ठीक है, केमिस्ट्री में जिस तरीके से हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोलिसिस, वही प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस प्रोड्यूसिंग पाउडर्स बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड। मैंने बोला जैसे कि केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है, ठीक है, उसको इस तरह से कंट्रोल करते हैं, इलेक्ट्रोड्स आर कंट्रोल्ड that
सॉफ्ट स्पॉन्जी, मतलब जैसे झाग होता है ना, ठीक है, वैसा झाग बनते तक सॉफ्ट स्पॉन्जी डिपॉजिट एज इस फॉर्म। हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस जो करते हैं वो इतने कंट्रोल्ड वे में किया जाता है कि वहां पे मेटल के झाग बनने शुरू हो जाते हैं। ओके, देन फिर क्या होता है झाग बनने के बाद, देन pulverized to form पाउडर। ठीक है, फिर पर्वलाइजेशन किया जाता है, उसके बाद हमको पाउडर निकलता है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जो साइज रहती है वो काफ़ी अलग अलग होती है, कई बार बड़ी भी होती है, कई बार छोटी भी होती है। ये क्यों होती है, साइज में चेंजेस इतने क्यों आते हैं, ड्यू टू द पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमने प्रोसेस को किस तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। उसी से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से बनने वाले जो छोटे छोटे कण हैं, कई बार बड़े बनेंगे, कई बार छोटे बनेंगे, और पूर्णतः डिपेंड करेगा आपके इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के ऊपर। ठीक है, इसमें भी हम आयरन, कॉपर और अदर मेटल्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कार्बोनिल प्रोसेस ऑफ पाउडर प्रोडक्शन। कार्बोनिल प्रोसेस, फोर्थ वन, कैसे किया जाता है कार्बोनिल प्रोसेस। जैसा कि आपको कार्बोनिल नाम से पता चल रहा है, देयर इज अ यूज ऑफ कार्बन इन द प्रोसेस। हाउ द कार्बन इज बीइंग यूज्ड, कार्बन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है इस प्रोसेस में। क्या होता है, नंबर ऑफ मेटल्स कैन रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बहुत सारे मेटल रिएक्ट कर जाते हैं टू फॉर्म, और क्या बनाते हैं, कार्बोनिल। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे आयरन मिक्स हो जाता है और बनाता है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड को 48 to 200 बार के प्रेशर में रखा जाता है। ओके, एंड देन इट इज हीटेड, इतना प्रेशर रख करके इसको हीट किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो मेटल होता है वो उसका कार्बोनिल बन जाता है, और टेम्परेचर जब आपका 200, हीटेड एट द टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो द रिजल्ट वी फॉर्म इज कार्बोनिल्स। ठीक है, इसकी बहुत हाई प्योरिटी रहती है कार्बोनिल प्रोडक्ट की, जो रहती है कार्बोनिल प्रोसेस में जो हमको प्रोडक्ट पाउडर मिलता है, इसकी प्योरिटी बहुत हाई रहती है, इसलिए इसका कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ में आया। कार्बोनिल प्रोसेस में क्या होता है, कुछ नहीं करते हैं, इसमें अपन कार्बन मोनोऑक्साइड से अपने मेटल पीस को रिएक्ट करवाते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 200 to 300 डिग्री इन द प्रेशर, अंडर द प्रेशर ऑफ 48 to 200 डिग्री 200 बार। तो जो ड्यू टू द रिएक्शन कार्बोनिल्स आर formed, and these carbonyls are in the purest form, and also they are very heavy in cost. Now fifth one is stamp and ball mills, process of production of powder. We will see how stamp and ball mills are used for making powders of metal. This one, stamp and ball mills. These are the mechanical methods. These are mechanical methods produce a relative coarse पाउडर। ठीक है, खुरदुरा पाउडर बनाता है, चिकना पाउडर में। बॉल मिल्स मतलब यहाँ पे छोटे छोटे जो मेटालिक बॉल रहते हैं। ठीक है, और जैसे मिल मतलब जैसे आटे चक्की होती है ना, उस तरह की। तो ये बॉल क्या करते हैं, इनके नीचे में मेटल पीस होता है, और इस मेटल पीस को जब बॉल के पास से पास कराया जाता है तो वो धीरे धीरे पीसना शुरू कर देते हैं।
ठीक है। तो जब धीरे धीरे पीसना शुरू कर देते हैं तो उससे निकलने वाला जो पाउडर रहता है इट इज वेरी कोर्स इन फॉर्मेशन। ओके, ये प्रोसेस किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर द ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, बॉल मिल्स। और स्टैंपिंग मेथड यूज किया जाता है फॉर डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, नाउ वी विल सी ग्रेनुलेशन प्रोसेस। ग्रेनुलेशन प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्साइड फिल्म्स आर फॉर्म। In granulation process, oxide films are formed. कब फॉर्म होता है? When bath of metal is stirred in contact with air. ठीक है, when a bath of metal is stirred with contact with air, this process is relatively form very coarse powder, okay, with a high percentage of oxide. इसमें ऑक्साइड फिल्म फॉर्म हो रही है तो ऑक्साइड्स के जो परसेंटेज रहती है वो काफी ज्यादा होती है और कोर्स मटेरियल, कोर्स पाउडर हमको मिलता है। नाउ लेट्स सी मैकेनिकल alloying method, this one. This mechanical alloying method. alloying मतलब मिश्रित धातु। ठीक है, how this mechanical alloying method affects affects नहीं, how this mechanical alloying method used to form a metallic powder. In this method, powders of two or more pure metals are mixed in a ball mill. बॉल मिल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, अंडर इम्पैक्ट ऑफ हार्ड बॉल, बहुत हार्ड बॉल रहते हैं, दो मेटल को आपस में मिक्स किया जाता है। द पाउडर्स फ्रैक्चर, ठीक है, पाउडर और पिसा जाते हैं और वेल्ड होते हैं। ठीक है, बाय डिफ्यूजन, और क्या बनाते हैं? एलाइन पाउडर। ठीक है, दो मिश्रित धातु, दो धातु को मिश्रण करके मैकेनिकल एलाइन पाउडर बनाया जाता है। नाउ लेट्स लास्ट वन इज अदर्स मेथड। व्हाट आर द अदर मेथड? अदर मेथड्स आर, पहला तो मशीनिंग, कि मशीनिंग से हम बना ले, है ना, पहला प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस इज अदर मेथड में। और कौन इनके अलावा, मतलब एटमाइजिंग, गैसियस रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, कार्बोनिल प्रोसेस, स्टैम्प एंड बॉल मिल्स, ग्रेनुलेशन प्रोसेस एंड मैकेनिकल एलॉइंग के अलावा और कौन से मेथड है जो कि पाउडर प्रोडक्शन में मदद करते हैं? तो वो मेथड है आपके प्रेसिपिटेशन, यानी परत बना करके। ठीक है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है? देखिए, हम जिस कभी कुछ चीजें होती हैं जिसको हम घोलते हैं, जैसे आप चौक को घोलिए, ठीक है, चौक जिससे हम बोर्ड में जो यूज करते हैं उसको पानी में आप घोलेंगे तो पूरी तरह से घुलनशील नहीं होता, उसकी एक पाउडर की लेयर होती है जो सतह पर, सॉरी, जो बेस में बैठ जाती है। वो जो बैठा हुआ प्रोडक्ट होता है उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो दैट मेथड इज कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेशन, क्रिएटिंग अ प्रेसिपिटेट थ्रू अ केमिकल सॉल्यूशन। अदर मेथड्स में दूसरा प्रोसेस हो सकता है, होता है मशीनिंग, मशीन से हम पाउडर बनाएं। तीसरा प्रोसेस है वेपर कंडीशनिंग, वेपर कंडेंसेशन। ठीक है, so these are the three other methods of production of powder.
So these are about the how powder production is done. Second, the powder metallurgy को जो second step है, that is a blending of metal powders. अच्छा, before that I have kept a diagram here which will show you how process has been, how powder is formed. See, ये process है, ये metal है, metal को pour किया गया है. ओके, जो ऑटोमाइजिंग प्रोसेस में बता रही थी वही प्रोसेस है यहाँ पे. मेटल को पोर किया, मतलब पिघलाया गया है. पिघलाने के बाद में यहाँ पर प्रेशर बढ़ा दिया गया है उसका थ्रू द ऑरिफाइस. ये देखिए ऑरिफाइस है, काफ़ी प्रेशर बनाया गया है. यहाँ से पानी का जेट और वाटर स्प्रे को स्प्रे किया जा रहा है मोल्टन मेटल के ऊपर. तो वो मोल्टन मेटल अचानक से ठंडा होकर के एकदम रैपिडली कूल होकर के यहाँ पे पाउडर के फॉर्म में नीचे कलेक्ट होता जा रहा है चैम्बर में. और फिर यहाँ पर हम हॉपर की मदद से निकाल लेते हैं. वाटर ऑटोमाइजेशन प्रोसेस व्हेन वेयर अ मोल्टन मेटल स्टीम इज disintegrated by multiple water jets. The angle determines the atomization efficiency. Which angle? This alpha angle. ठीक है. So this is the atomizing process, and here is the conventional powder manufacturing process. बेस पाउडर लॉइंग मेटल को हम लेते हैं, उसको मिक्सिंग करते हैं, फिर उसको प्रेस करते हैं. ठीक है. फिर उसको हम यहाँ पर डिल्यूब्रिकेशन, ऑक्साइड रिडक्शन, सिंटरिंग, हीट ट्रीटमेंट, फिर प्री हीट जोन कहलाता है. ये प्रोसेस आपका हॉट जोन कहलाता है. ये कूलिंग जोन कहलाता है ना. सिंटरिंग, फिर उसको हम क्या करते हैं, फिर उसी से हम फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं. तो दिस इज द लेआउट ऑफ सिंपल पाउडर मेटलर्जिकल प्रोसेस. नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट इज ब्लेंडिंग, मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ पाउडर्स. So you can see here in this diagram, यहाँ पर several blending mixing devices are there. First one, the A portion is rotating drum. Here in the diagram it is given. This is a rotating drum. B1 is rotating double cone, and C1 is screw mixture. अंदर में screw जैसा ये, ठीक है. And D1 is blade mixture. Okay. As you can see in the diagram, बहुत सिंपल सा चीज़ है blending and mixing. इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ड्रम है, ड्रम में हमने पाउडर को फीड कर दिया है, एंड दिस ड्रम इज, जैसे ये डायग्राम दिखा रहा है वैसे उस हिसाब से ये रोटेट करना शुरू कर देगा. तो जो मेटल है, जो मेटल पाउडर है, वो ब्लेंडिंग मटेरियल के साथ में हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा. ओके. तो इसको किया क्यों जाता है? ओके, फर्स्ट थिंग हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, सारी चीज़ें मैं मिक्स नहीं करूँगी आपको. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रोटेटिंग ड्रम से. तो यहाँ ड्रम में पाउडर को मिक्स कर डाल दिया जाता है ब्लेंडिंग मटेरियल के साथ में, और उसके बाद इसको रोटेट किया जाता है ताकि पाउडर और ब्लेंडिंग मटेरियल यहाँ पर मिक्स हो जाए. उसी तरह से यहाँ पे इस तरह का रोटेटिंग डबल कोन, इसको बेंड कर, इसमें पाउडर को फिल कर दिया जाता है और इसको घुमाया जाता है. घुमाया जैसे हम शेक करते हैं ना, कोई भी चीज़ को मिक्स करना है तो हम शेक करते हैं, उस तरह से यहाँ पे स्क्रूइंग की जा रही है. यहाँ पे मेटल जो है ऊपर नीचे होगा और स्क्रू की मदद से और अच्छे तरीके से मिक्स होगा. यहाँ पे ब्लेड का इस्तेमाल किया जा रहा है मेटल को मिक्स करने के. Now we want to know why blending is required. Okay, जब हमने उसमें ऑटोमाइजिंग कर दी है, प्रोसेस पाउडर बना लिया है, then blending needs, the need of blending is what? We will start with the purpose of the blending. Purpose of the blending is to obtain uniformity. Okay, क्यों uniformity? Since the process of the powder making process are involve various process. ठीक है, बहुत सारे process के through the powder making process is defined, is done. तो जो हमारे ग्रेन्यूल्स की साइज है, जो हमारे एटम्स के साइज है, पाउडर के जो कणों के साइजेस हैं, वो डिफरेंट साइज और शेप के होते हैं. ठीक है, तो उसका साइज और शेप एक जैसा हो जाए, इसलिए इट इज रिक्वायर्ड दैट इट शुड बी uniform, and uniformity is done by the blending and mixing of the process. Second purpose of blending is to impart spatial, physical and mechanical properties. ठीक है, and कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब उस पाउडर में हमको कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज डेवलप करनी है, तो हम उस मटेरियल को उसमें मिला देते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने कभी सिरेमिक का काम किया होगा, तो उस सिरेमिक में हम क्या करते हैं, सिरेमिक का अगर हमको कोई आर्टिफिशियल आर्टिस्टिक चीज़ बनानी है, मान लीजिए हम पॉट की डेकोरेशन कर रहे हैं,
क्योंकि मैंने किया हुआ है इसलिए मुझे वही एग्जाम्पल सही लग रहा है आपको समझाने के लिए। तो हम क्या करते हैं उसमें बाइंडर मिलाते हैं। बाइंडर क्या मिलाते हैं? फेविकॉल मिलाते हैं। ओके, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से पकड़ पाए इसलिए फेविकॉल मिलाते हैं। यू कैन डू इट विद द गम ऑल्सो, आप गोंद के साथ भी उसमें काम कर सकते हैं। बट जो फेविकॉल का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है कंपैरिजन टू दी गम वी यूज। ओके, तो इसको फेविकॉल को मिलाने की वजह से क्या होता है, सिरेमिक पाउडर में उसकी कैरेक्टरिस्टिक बदल जाती है, उसके प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है और काफ़ी अच्छा स्मूथ पेस्ट बनता है, जिससे हम कोई भी आर्टिस्टिक काम कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो मेटल का पीसेस होते हैं, मेटल के जो पाउडर होते हैं, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम उसमें कुछ स्पेशल पाउडर मिक्स करते हैं, ताकि वो हमारे काम को और अच्छे तरीके से सपोर्ट करे और हम उससे अपना यूजफुल प्रोडक्ट बना सकें। ओके, थर्ड पर्पस इज एडिशन ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स। इसमें इसी स्टेज में ल्यूब्रिकेंट्स को भी मिला दिया जाता है। ठीक है, किस तरह के ल्यूब्रिकेंट्स? ल्यूब्रिकेंट्स मतलब जिंक, स्ट्रेट। ठीक है, इसको एक प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड, स्टेरिक एसिड। ओके, तो इन सब चीज़ों को पाउडर में मिला दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ द पाउडर गेट इंक्रीजेस। ओके, फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है, साथ में फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। हमको लुब्रिकेंट जब भी हम यूज करते हैं तो जो मेन पर्पस रहता है वियर एंड टियर को खत्म करने के लिए एंड फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। So whenever we are mixing lubricants with the powder, that means again the same purpose will be resolved. That means it will reduce the friction between the metal particles and improve the flow of the powder metals into the dies and for the longer life. Okay. Fourth purpose of blending is to avoid contamination. ठीक है, and deterioration. DTRIORATION to avoid contamination and deterioration. इसमें कुछ पाउडर मिक्स किए जाते हैं जिसके वजह से इसमें हम इस पाउडर को कंट्रोल्ड कंडीशन में अपने फिनिश प्रोडक्ट तक बनने तक संभाल पाते हैं। ठीक है, सो दीज आर द फोर पर्पस ऑफ ब्लेंडिंग। नेक्स्ट वी विल सी व्हाई प्रेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग। दिस इज द प्रोसेस, प्रेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग। ब्लेंडिंग करने के बाद में, मिक्सिंग करने के बाद में हम उसको एक डाई में डाल देते हैं। ठीक है, डाई का ये फर्स्ट स्टेज है, ये ऊपर अपर डाई है, ये लोअर डाई है और एक कैविटी होती है, इस कैविटी में हम इसमें पाउडर को फिल कर देते हैं। ठीक है, और फिर ऊपर से उसको दबाते हैं ताकि इसके अंदर में मौजूद हवा वगैरह जो होती है वो निकल जाए। दबाने के बाद इसका साइज जो है रिड्यूस हो जाता है, पहले इतना रहता है, फिर देखिए यहाँ पर ये जो है ग्रीन कॉम्पैक्ट बन जाता है, इसको बोलते हैं ग्रीन कॉम्पैक्ट। ठीक है, जो पहले पाउडर भरने से इतनी साइज ले रही थी, अब उसको हवा वगैरह निकाल दिया है कॉम्पैक्ट करने की वजह से, तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, कॉम्पैक्ट पाउडर का आप जैसे जो हम लड़कियां यूज करती हैं कॉम्पैक्ट पाउडर, देखा होगा आपने, तो वो भी एक एग्जाम्पल है आपको कॉम्पैक्शन का। ठीक है, आप जो नॉर्मल पाउडर यूज करते हैं टेलीकॉम पाउडर, उसमें वो ज़्यादा लगता है और ये थोड़ा सा ही लगता है, थोड़े में ही आपका पर्पस फुलफिल हो जाता है। ठीक है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पैक्शन। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अंडर प्रेशर हम क्या करते हैं, पहले पाउडर को लेकर के उसको दबाते हैं, दबाने की वजह से उसके अंदर के प्रेशर, उसके अंदर का जो हवा वगैरह होता है वो निकल जाता है और उसका जो साइज है पाउडर का, जो एक्यूमुलेशन एरिया रहता है वो काफ़ी कम हो जाता है। सो दिस इज अ कॉम्पैक्शन। तो कॉम्पैक्शन करने से क्या होता है, कॉम्पैक्टिंग करने से क्या होता है, we will see the purpose of compacting. What are the effects of compacting? The first one is it reduces voids. पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, एंड increases
डेंसिटी ऑफ कॉम्पैक्ट, ठीक है, उसके घनत्व को बढ़ा देता है। सेकेंड, प्रोड्यूसेस adhesion and whole building of powder with sufficient green strength, ठीक है। थर्ड पर्पस, प्लास्टिकली deform powders allowed to recrystallization, ठीक है। फोर्थ पर्पस is plastically deformed powders also to increase contact areas between powdered particles, which results in increasing green strength, ठीक है। these are the purpose of, these are the effects of कॉम्पैक्शन। कैसे किया जाता है मैंने आपको डायग्राम में बताया, और उससे होता क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया, ओके। इससे यूनिफॉर्मिटी भी काफी बढ़ जाती है, और ये रूम टेम्परेचर में ही किया जाता है, अंडर द प्रेशर। प्रेशर कितना रखा जाता है इसका, what is the pressure kept, it is 7.5 to 37.5 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखा जाता है, ठीक है। कॉम्पैक्टिंग के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है दैट इंक्लूड्स सिंटरिंग। सिंटरिंग क्या होता है, यहाँ डायग्राम में रखा है मैंने, देखिए ये चेंजेस है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। इससे हमको कुछ आइडिया क्लियर हो, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ पाउडर, ठीक है। सिंटरिंग करने के बाद दिस इज द रिजल्टेंट। सिंटरिंग means heating of pressed compact powder, ठीक है। at what temperature, to below melting points, ठीक है। इसको क्या करते हैं, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है उसके नीचे हम उसको कंपैक्ट करने के बाद में हम उसको प्रेस करते हैं, ठीक है। प्रेस होता है, सॉरी, प्रेसिंग इज डन इन द कंपैक्टिंग प्रोसेस, दिस वन, ओके। आफ्टर प्रेसिंग एंड कंपैक्टिंग वी यूज टू हीट दैट मटेरियल, ओके। वो कंपैक्ट पाउडर को फिर हीट किया जाता है। तो इस तरह से देखिए उसमें चेंजेस आते हैं। शुरू में फर्स्ट स्टेज है, दिस वन इज फर्स्ट वन, सेकेंड स्टेज में फिर गर्म करने के बाद एंड दिस इज द फाइनल स्टेज और थर्ड स्टेज, ठीक है। फाइनल स्टेज में हमको इस तरह का पाउडर मिलता है। तो व्हाट हैपेंस विद सच हीटिंग प्रोसेस, सच हीटिंग प्रोसेस facilitates बॉन्डिंग एक्शन, ठीक है। एक दूसरे के साथ में एक एक जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में बॉन्डिंग हो जाते हैं, बिटवीन बॉन्डिंग एक्शन बिटवीन इंडिविजुअल पाउडर पार्टिकल्स, ठीक है, विच इंक्रीजेस, आपस में जुड़ जाते हैं सारे पाउडर्स, ठीक है। तो उससे क्या होता है, इट इंक्रीजेस दी स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पैक्ट, ठीक है। उससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। तो दिस सिंटरिंग इज डन बाय 3 प्रोसेस।
थ्री वेज, तीन मेथड है हमारे सिंटरिंग प्रोसेस के लिए. फर्स्ट इज melting of a minor constituent. Second one is diffusion. By diffusion we can do the sintering process. And third one is mechanical bonding. Mechanical bonding का इस्तेमाल करके भी sintering process किया जाता है. And what are the factors which affects the sintering process? They are obviously melting point है. The first factor which affects the sintering is temperature. ठीक है, टेम्परेचर. दूसरा कितने देर तक कर रहे हो, दैट मीन्स टाइम. एंड थर्ड वन इज फर्नेस, एटमॉस्फेयर. ठीक है, ऑल दीज थ्री आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स सिंटरिंग प्रोसेस. ठीक है, तो व्हाट हैपेंस, ये रहता है मेटल, इसके बीच में देखिए ये छोटे छोटे कण है हमारे. कॉम्पैक्ट करने के बाद में कण का साइज इस तरह से होमोजीनियस हो जाता है. होमोजीनियस होने के बावजूद भी ये आपस में मिले तो हुए हैं, मगर फिर भी बहुत बड़े बड़े वॉइड्स होते हैं. ये माइक्रोस्कोपिक वेव है. तो आप जैसे जैसे उसको गर्म करते जाएंगे तो उनके बीच के जो वॉइड्स हैं वो काफ़ी कम होते जाते हैं. ठीक है, कम होते होते वो आपस में घुल मिल जाते हैं और बहुत ही कम मात्रा में जो वॉइड्स होते हैं वो रह जाते हैं. तो इससे क्या होता है, उनकी स्ट्रेंथ जो है काफ़ी बढ़ जाती है. नाउ लास्ट वन इज इनफिल्ट्रेशन, दैट मीन्स फिनिशिंग ऑपरेशन. फिनिशिंग ऑपरेशन में क्या होता है, what happens in finishing operation after sintering? finishing is done. finishing में हम करते हैं repressing. repressing की जाती है, forging की जाती है और infiltration किया जाता है. repressing की जाती है for dimensional accuracy, to obtain dimensional accuracy to sintered part. जो सिंटरिंग की जा चुकी है उसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, उसमें रीप्रेसिंग किया जाता है, दोबारा उसको प्रेस किया जाता है. विच विल, तो क्या होगा, जो भी हमारा सरफेस फिनिश रहेगा इट विल हैव एडिशनल डेंसिफिकेशन. ठीक है, जो हमारा मतलब हमने मटेरियल को बना लिया, पाउडर सिंटरिंग करने के बाद हमने उससे प्रोडक्ट बना लिया. प्रोडक्ट को बनाने के बाद हम उसमें रीप्रेसिंग करते हैं ताकि हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है वो ऊपर से काफ़ी कड़ा रहे और उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहे. तो रिप्रेसिंग की जाती है. फोर्जिंग भी की जाती है. तो ये क्या है, सिंटर्ड और अनसिंटर्ड दोनों के लिए किया जाता है फोर्जिंग प्रोसेस फॉर द एलॉय पाउडर. ठीक है, विच परफॉर्म्स इन अ हॉट फोर्ज इन अ हीटेड फॉर्म. ठीक है, तो इसको क्यों किया जाता है, फॉर व्हाट हैपेंस इन फोर्जिंग, जो भी फोर्जिंग की क्वालिटी होती है दैट विल इट इज अ टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट. तो उसके उससे उससे उसकी स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाती है और वो आपस में काफ़ी अच्छे से जो पाउडर होते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं. इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन का यहाँ पर मैंने डायग्राम रखा हुआ है. यू कैन सी दिस इज अ पोरस बॉडी, इट इज अ मेटल बाथ. ओके, ये अलग अलग तरीके से हम उसको इनफिल्टर कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, फर्स्ट मेथड है मेटल बाथ और ये हमारा इसमें हमने पोरस बॉडी को डाल के रखा हुआ है. ये है मेटल बाथ. दूसरा तरीका ये है. तीसरा है हीट ट्रीटिंग फर्नेस. यहाँ पर सॉलिड मेटल को हम इसमें डाल देते हैं हीट ट्रीटिंग फर्नेस में. तो इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है, इट इज इन दिस प्रोसेस अ मेटल स्लग विथ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इज प्लेस्ड. ठीक है, एक मेटल स्लग लिया जाता है जिसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट रहता है. ठीक है, किसके साथ प्लेस किया जाता है, प्लेस्ड अगेंस्ट सिंटर्ड पार्ट. ठीक है, जो सिंटर्ड पार्ट रहता है उसके अगेंस्ट में हम इसको सेट करते हैं मेटल स्लग को एट हीट. फिर हीट करते हैं, हीटेड
टू अ टेम्परेचर, कहाँ तक हीट करते हैं, जहाँ तक कि उसका टेम्परेचर इज सफिशिएंट टू मेल्ट दी स्लग। दो मेटल पीसेस को आपस में रखा जाता है, एक पीस रहता है सिंपल पीस, दूसरा रहता है आपका सिंटर का, और फिर दोनों को मिलाकर के गर्म किया जाता है जब तक कि हमारा जो स्लग है वो गल नहीं जाता। ओके, फिर क्या होता है उसमें, जो मोल्टन मेटल रहता है इनफिल्ट्रेट्स द पोर्स ऑफ कैपिलरी एक्शन रिजल्टिंग इन रिलेटिविटी पोर फ्री पार्ट विथ गुड डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, आपको मैं डायग्रामेटिकली समझा रही हूँ। यहाँ पर ये है आपका सेंटर्ड पार्ट, ओके, और ये जो मेटल बात है ये है हमारा स्लग, मेटल स्लग। ये दोनों को आपस में, पहले ये इसी रूप में था, दोनों को आपस में साथ में रखा, साथ में रखने से क्या हुआ, और उसको गर्म करना शुरू किया। गर्म करने से क्या हुआ, जो हमारा स्लग है ये पिघल गया। ठीक है, पिघल गया तो क्या हो रहा है, अब इसमें हम जो हमारा मेटल सेंटर्ड पार्ट है इसके चारों तरफ ये चिपक जाता है इस तरह से। ठीक है, ये पूरा डूब जाता है, हमारा जो पोरस बॉडी रहता है यानी सेंटर्ड पार्ट जो है हमारा पूरी तरीके से इसमें डूब जाता है। डूबने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर की जो पोरोसिटी होती है, क्योंकि अभी भी तो ये पाउडर से बना हुआ है, तो जो थोड़े बहुत वाइट्स बचे हैं, अब देखिए यहाँ पर सेंटर्ड पार्ट में दिखा रहा है ना, ये छोटे छोटे जो काले डॉट्स हैं ये वाइट्स हैं, वाइट्स मतलब खाली जगह है। इस खाली जगह को भी हमको भरना है, नहीं तो हमारा मेटल पीस जो हमने फिनिश प्रोडक्ट बनाया है वो काफी कमजोर रहेगा। तो उस खाली जगह को भरने के लिए जो स्लग क्या करता है, उस खाली जगह पे फिल कर देता है और जाकर के चिपक जाता है और घुस जाता है थ्रू द एक्शन ऑफ कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी एक्शन आपने पढ़ा है, बाय द कैपिलरी एक्शन ऑल द पोर्स गेट क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ पे मेटल हीट ट्रीटमेंट करने से ये स्लग है आपका, ये सॉलिड मेटल है, ये जब पिघल जाएगा तो इसको यहाँ पर इसमें डुबो देंगे, डुबोने की वजह से इसके अंदर के जो छेद है उसमें जाकर के ये कैपिलरी एक्शन से पिघला हुआ मेटल फिल हो जाएगा। तो जब पिघला वाला मेटल जो आपस में फिल हो जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ को भी और स्टेबिलिटी को भी मेटल के बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे फिनिश प्रोडक्ट को स्ट्रेंथ मिल जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर पाउडर मेटलर्जी। The next topic is, your next topic is plastic mold. It will be your assignment. इस टॉपिक को आप लोग खुद करेंगे as per the syllabus given. Okay, thank you all of you.